ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನ, ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಗೋ ನಿಷೇಧ ಆಜ್ಞೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೋಗಳನ್ನು RSS ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಗೋ ಆಹಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಾನೂನು ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಇವರೇ ಮಾರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮಾರೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಗೋಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಲಾಟರ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನ, ಈ ಪಶು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿ, ಜನ, ನೆಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೋವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾದ್ರು ಕಾನೂನು ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಆಹಾರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಐಕ್ಯತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಬಡ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ದಿವಸ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಆದಂಥ ಐಕ್ಯ ರಂಗವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हाज़रीन, हमारे खतीब व इमाम बेपारिया मस्जिद मौलाना अफसर अजीज़ी साहब का ख़िताब होगा, क्योंकि वो ईशान की नमाज़ पढ़ाने के लिए जाना है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम भी मौलाना का कुछ ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। स्टेज पर बैठे हुए मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवा, रहबरान कौम और जितने सामईन हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सबसे पहले आप सब हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि एक जलते और सुलगते हुए मसले पर अपने इत्तेहाद का सबूत आपने दिया है यहाँ जमा होकर। और इसके साथ
الحاج BM यूसुफ कुरैशी साहब और उनके रुफ़क़ा, उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इस मसले पर तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को, जिसमें फ़ादर भी हैं और बुद्धिज़्म से रहबरी फरमाने वाले बुद्धिस्ट भी यहाँ हैं, और ये आपका खादिम आपके सामने खड़ा है। मोहतरम हाज़रीन किराम, हम उस मुल्क में जी रहे हैं जिस मुल्क में कुछ लोगों की नज़रों में ना इंसानों की कदर है, ना इंसानों के अक़दार की। मुझे याद पड़ता है गालिबन महात्मा गांधी जी का यह जुमला कि इस मुल्क को अगर तरक्की करना है, इस मुल्क को नाम कमाना है, तरक्की की राहों पर अगर चलना है, तो जब तक इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों का एतमाद हासिल न किया जाए, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और आप सब हजरात जानते हैं, जिस वक्त मंदिरों पर कोई जुल्म हुआ, मुसलमान उठकर खड़ा हुआ। चर्च में बम फोड़े गए, मुसलमान खड़ा हुआ। गैरों पर जुल्म हुआ, अभी बॉम्बे का जो हादिसा है, सब मुसलमानों ने ऐलान किया कि हाँ, वाक़ियतन अगर जुर्म किसी से हुआ है, भले वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम लोग जहाँ इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ शाना बशाना चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा यह जुमला कानूनी गिरफ्त में आता है कि नहीं आता है। यहाँ कानून दान जनाब ज़िया कर्नाटकी तशरीफ़ फरमा है, उनकी मौजूदगी में मैं यह अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर मेरा यह जुमला कानूनी गिरफ्त में नहीं आता है तो देखिए, ये मुल्क जहाँ इंसान गाजर और मूली की तरह कट रहा है, उसकी फिक्र नहीं है, और गाय के कटने की फिक्र है। और आप देख रहे हैं, जितने जानवर हैं, गाय हो, बकरा हो या उसके अलावा दूसरे जानवर, जिन जानवरों को कसरत से काटा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उसमें तरक्की होती है। और जिन जानवरों को खाया नहीं जाता, जैसे शेर है, जैसे चीता है, जैसे गधा है, जैसे घोड़ा है, इन पर आप नजर डालें तो इनकी नस्ल ज्यादा नहीं मिलती। बकरीद में जितने जानवर कटते हैं, और आपने देखा होगा अल्लाह तबारक व तआला वैसी ही उसके अंदर तरक्की देते हैं। कुत्तों को लीजिए, इनमें भी नस्ल नहीं बढ़ती। एक एतराज होगा कि शहर बेंगलोर में बहुत ज्यादा है। अखबारों में खबरें आई कि वसंत नगर और नील संदर के कुछ इलाकों में बाहर के कुछ लोग, गालिबन आसामी हजरात हैं, उन्होंने इनको काटा। हो सकता है कि उस काटने की वजह से उसमें भी तरक्की हुई हो। यह कानून है कि जिन जानवरों को, हाँ, इस मुल्क में हमने एहतराम किया। जिस वक्त सन 1964 में यह कानून बना कि गाय को नहीं काटा जाना चाहिए, एक बात मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, ये मेरा जुमला नहीं है, उस वक्त किसी ने कहा था कि सारे कुरैश बिरादरी अगर मिलकर ये तय कर लें मसलन कि ठीक है, चलो एक साल हम नहीं काटेंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, इस मुल्क में जहां इंसानों को रहने के लिए छत मुयस्सर नहीं है, पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है, गरीबी की सतह से नीचे लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उस मुल्क में जहां इंसानों को सुकून नहीं मिल सका, नहीं मालूम कि जानवरों को किस तरह पाला जाएगा, कहां से चारा ला जाएगा। लोग मेहनत करते हैं, आधी रोटी मुयस्सर नहीं है। और जिन जानवरों को बकरीद के मौके पर पकड़ा गया, जिन जानवरों को ले जाकर आश्रम में रखा गया, क्या मैं ये पूछने का हक रखता हूं कि हमारे इस्लाम में इंसानों की भी हमदर्दी बताई गई, जानवरों की हमदर्दी बताई गई। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रास्तों पर चलो, देख कर चलना कि कहीं तुम्हारे कदमों के नीचे कोई चींटी मर न जाए। इस तरह का दर्स देने वाले हमारे आका, इस तरह का सबक देने वाली हमारी शरीयत, ये किसी पर जुल्म करने की कैसे इजाजत देगी। ठीक है, जब कानून बना, हमने एहतराम किया कि गाय को हम ज़िबा नहीं करेंगे। और आपकी इत्तला के लिए एक बात और अर्ज करूं, चमड़े की सारी तिजारतों पर अगर इंक्वायरी की जाए तो उन्हीं का कब्जा है। जितना गोश्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, सब उन्हीं का कब्जा है। ये खुर कहां जाते हैं, ये हड्डियां कहां जाती हैं,
इनके फैक्ट्रीज कौन चला रहे हैं? अगर हमने तय कर लिया खुदा न खास्ता 1 साल के लिए ठीक है हम नहीं काटेंगे, तो इस मुल्क के हजारों दलित, हजारों गुरबा, हजारों कंपनियां वाले, हजारों फैक्ट्री वाले सब बेकार हो जाएंगे, एक एक रोटी के मोहताज हो जाएंगे। जितना गोश्त एक्सपोर्ट होता है मुसलमान नहीं है। अल कबीर को कौन चलाता है? ताजिर। सारे चमड़ों की तिजारतें किसके पास हैं? सब तिजारतें चली गई हैं। आज भी अगर इसी मौजू पर अगर बात की जाए, मैं अर्ज करता हूं ठीक है हमने एहतराम किया, हमने गाय को सिवा नहीं किया है। एक जुमला यहां मैं क्या पूछ सकता हूं हमारे बरादरान वतन से, जब हमने तय कर लिया कि हम गाय नहीं काटेंगे, तो क्या हमारी मस्जिदों के तहफ्फुज की गारंटी आप देंगे? इस्लामी शायर की गारंटी आप देंगे? चर्च की हिफाजत की गारंटी देंगे? जितने दूसरे गुरुद्वारे हैं उनकी गारंटी की, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी और गारंटी दी जाएगी? नहीं। एक तरह का इस मुल्क में ना सुकून से रहने दिया जा रहा है और ना वो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में सुकून से रहा जाए। और पूरी दुनिया में एक हमारा मुल्क है। इस जुमले पर हजरत उलमा किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, हरमैन शरीफैन से कतई नजर इन दोनों मुकद्दस ममालिक को छोड़कर अर्ज करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जैसा मेरा और आपका ये हिंदुस्तान है, जहां हम सब साथ साथ जीते हैं, शाना बशाना जीते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब बी.एम. यूसुफ कुरैशी साहब को कि उन्होंने इस सिलसिले में तवज्जो की। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए तमाम हजरात जो दूसरी कौम के रहनुमायान हैं, फादर हैं, बुद्धिस्ट से जिम्मेदार उनके एक पेशवा आए हैं, हमारे सदर मोहतरम हैं और दूसरे सियासी रहनुमा हैं, कायदीन हैं, कानूनदान हैं, इन सब से भी मेरी गुजारिश है। हालांकि यहाँ जो क्राउड है, बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि ये क्राउड नाकाफी है। जो मसला सुलगता हुआ मसला है, ये सिर्फ कुरैशियों का मसला नहीं है, ये मेरा आपका पूरे मुसलमानों का मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर शहद से अपने आप को बचाया। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ मेरे हबीब, ये शहद तो आपके लिए हमने हलाल किया, इससे रुकने का आपको क्या हक पहुंचता है? जब हमारी शरीयत में अल्लाह ने अपने हबीब से खुद सवाल किया है, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, मैं और आप हुकूमत XYZ कौन होते हैं जो हमें रोक सकते हैं? इसलिए कि यह हमारा इस्लामी शार है, ये हमारे इस्लाम के अंदर बताया गया कि इसे खाया जाए, इसे खाया ना जाए। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि गाय की फिक्र करने वालों के लिए ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, सब बनाएं, लेकिन जहां इंसानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, जानवरों को जो पकड़ा जा रहा है उसके पैसे कहां जा रहे हैं, उन जानवरों को कहां रखा जा रहा है? ठीक है चलो जानवरों को तुमने